1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 तिमोथी 4 चैप्टर 1 वर्स से 22 वर्स, जरमिया 26 चैप्टर 27 चैप्टर 28 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 तिमोथियस की पत्री 4 अध्याय 1 वचन से 22 वचन तक। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 26 अध्याय 27 अध्याय 28 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करो। आपने अगर हमें नहीं सिखाया ये वचन तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, हमारी समझ आने दो कि आप हमसे बातें कर रहे हैं और आप हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए और ईश्वरीय रचना में ढल कर आने के लिए हमारी सहायता कर रहे हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। 2 तिमोथी 4 चैप्टर 1 वर्स से 22 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। पॉल्स solemn charge to Timothy, first verse, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exalt with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Do thy diligence to come shortly unto me, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto the Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. At my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं याद रखना है मुझे कि जब हिंदी में हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी जो बोलना है वो।
मैं यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18 ये आगे वाले वर्सेस से ना, इसमें से मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। जब हम इसको पढ़ते हुए हिंदी में जाएंगे ना, तब हम इसके बारे में बताएंगे आपको कुछ खास बात। And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Salute Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus. Erastus abode at Corinth, but Trophimus have I left at Miletum sick. Do thy diligence to come. Erastus abode at Corinth, but Trophimus have I left at Miletum sick. Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeted thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. ये भी हमने ग्रीटिंग में एक दूसरे को जब हाय हेलो करते हैं उसकी जगह में इसको यूज़ करना है, ख़ास तौर पर जब प्रभु यीशु मसीह के लोग हमारे साथ संगति में उठते बैठते, तब हम एक दूसरे के लिए इस प्रकार के शब्दों को यूज़ करना है। 22 वचन का। The second epistle unto Timotheus, ordained the first bishop of the church of the Ephesians, was written from Rome when Paul was brought before Nero the second time. हम ये वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। दूसरे तिमोथियुस की पत्री, उसका 4था अध्याय और पहले वचन से 22 वचन, मतलब पूरा अध्याय हो गया हो। अब मैं आपको इसमें हिंदी में बताऊंगी जो मैं आपको इंग्लिश में पॉइंट आउट करके दिया था। दूसरे तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय पहले वचन से। दूसरे तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय 1 वचन से शुरू करेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों को खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहाँ पे देखो एक बात है, अपनी अपनी अभिलाषाओं के तरफ। अभी अभिलाषा आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन का भेद देखते हैं तो हमारे बटोरने में कौन कौन है वो ध्यान दीजिए। हमारे बटोरने में प्रेरित है, हमारे बटोरने में भविष्यद्वक्ता है, हमारे बटोरने में टीचर्स हैं, हमारे बटोरने में कुछ ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा के काम कर रहे थे, लेकिन अभी वो प्रभु में आए हैं, तो वो अपने अपने जीवन के अंदर से रहस्य की बातें हमको बताते हैं कि इस प्रकार से वो दुष्ट आत्माएं के काम हुआ करते थे, लेकिन हम प्रभु यीशु को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तो ये बताते हैं वो लोग। ओके, तो हमारा ये अभिलाषा हमारी उन्नति के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कोई ऐसा है जो मतलब कोई ऐसा जो रहस्यमय शक्तियों का पीछा करना, हाँ, मसीह यीशु को छोड़कर, पवित्र आत्मा को छोड़कर कुछ और प्रकार का कथन कहानी के पीछे चले जाना, समझ में आया। तो इस प्रकार का जो
एक प्रकार का सब्स्टिट्यूट देखते हैं। वो अगर ये काम नहीं किया तो वो काम करेगा, वो काम नहीं किया तो वो काम करेगा, ऐसे शक्तियों का भंडार बटोरने के पीछे जाते हैं वो। ठीक है, तो वो अभिलाषाओं के कारण होता है। तो इसके लिए हमको उस अभिलाषा के अनुसार हम नहीं है, हम जो बटोरते हैं वो हमारी आत्मिक भेद रहस्य में उन्नति आकर हम परमेश्वर के अच्छे से काम कर पाए। ये कारण से हम अपने काम को परमेश्वर के सम्मुख रखते हुए ज्ञान बुद्धि समझ में ऐसे लोगों के संगति में हो जाते हैं जो प्रेरित है, भविष्यद्वक्ता है, टीचर्स है, पास्टर्स है, और कुछ गवाह ऐसे हैं जो सुसमाचार के कारण हमको मालूम पड़ा है कि उनके अंदर से जीवन परिवर्तन कैसे हुए। तो इस प्रकार के लोगों को हमारे कांटेक्ट में हम रख के इस्तेमाल करते हैं अपनी उन्नति के लिए। हाँ, इसको हम अभिलाषा जो हमारे भटकने का मार्ग ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये हमारे उन्नति के फाउंडेशन बनने वाले, हमारे फाउंडेशन स्टोन्स जैसा रहता है, वैसा वो हमारे लाइफ को नींव पक्की करने में सहायता करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार नहीं है, फिर भी वो जानना चाहते हैं। ओके, फिर भी वो कुछ शक्तियाँ जो पवित्र आत्मा नहीं है, फिर भी वो पवित्र आत्मा नहीं है, फिर भी वो शक्तियों को जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे जगह है, कैसे बातें हैं जो मालूम नहीं है उनको, फिर भी वो वहाँ जाकर अपने आप का तसल्ली करना चाहते हैं कि हम भी कुछ अभी पावरफुल बन गए हैं। मतलब उनका भरोसा प्रभु यीशु पर नहीं है। इसके अलावा भी उनके पास कुछ सब्स्टिट्यूट है। ओके, ऑप्शंस है उनके पास। अगर ये रास्ता है तो हम वो वाला यूज़ करेंगे, अगर यीशु का रास्ता है तो हम पवित्र आत्मा को यूज़ करेंगे, ऐसा। ओके, तो वो अभिलाषाओं के कारण हो चुका है, होता है उनका। ओके, तो 5 वचन से हाँ हमने पढ़ा वो वचन कि हमको सेवा पूरा करना है, सुसमाचार से हमें हटना नहीं है, पर तो सब बातों में सावधान रहे। नंबर 1, ओके, दुख उठा। ओके, बहुत जल्दबाजी हम कर देते हैं, हम सोचते हैं बस हो गया, बस हो गया, बस हम इससे ज़्यादा नहीं सह सकते, अब ख़त्म करो बात को, हम नहीं सुसमाचार फैलाएंगे, इनको ख़त्म करो, मरने दो इनको, ऐसे इस प्रकार से हम अपने हियाव को छोड़ देते हैं। या फिर चलो जाने दो, ये चर्च छोड़ देंगे, ये तो बेकार तरह से हमें ट्रीट कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, हम छोड़ देंगे। ये तरह से हम उतावली हो जाते हैं, हम सहनशील नहीं रहते हैं। जब वचन का काम नहीं हो रहा है तो हम अपने आप को दोष देने लगते हैं कि शायद से मेरे से कुछ गलती हो गया होगा, इसके लिए मेरा काम नहीं बन रहा है, शायद किसी ने मुझे श्राप दिया होगा। तो हम सहनशील नहीं है। ओके, हम बहुत जल्दबाजी में है सब कुछ फटाफट फटाफट करने के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है सावधान रहे, दुख उठा। ओके, तेरा समय तेरी तरफ से ही रहने वाला है। हाँ, तेरी तरफ से ही फैसले रहने वाले हैं, लेकिन वो समय तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय कष्ट है तेरा, वो कष्ट में तू उतावला मत हो। हाँ, उस कष्ट को देखकर हड़बड़ी मत मचा, उस कष्ट को देखकर खुद को दोषी मत मान। समझ में आया? तो अपने अंदर नेगेटिविटी पैदा होने मत दे उस कष्ट के अंदर। समझ में आया? ये उसका कहना है। सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। व्यक्तिगत संदेश 9 वचन से आगे, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकि को चला गया है। क्रेस्केंस गलातिया को और तीतुस
दलमतिया को चला गया है, केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें, विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। देखिए, अब यहाँ पर जो वो अपनी पर्सनल बात में, आप सारे पत्रियों को पढ़ के देखिए, उसमें एक ही ये वचन आपको ऐसा मिल रहा है जो कबूल कर रहा है वो, कि बाकी जितना क्लेश मैंने सहन किया उससे ज़्यादा क्लेश अगर मुझे किसी ने दिया हो तो यहाँ का वो इंसान जो सिकंदर है, ओके, ठठेरा है, वो ने मुझे बहुत से बुराइयां की है। तो बहुत सी बुराइयां हो चुकी है उसकी, तो इस प्रकार के लोग अनुभव में आ जाते हैं। लेकिन उसका जवाब में वो क्या बोल रहा है, जब चर्चा कर रहा है तो वो बोल रहा है कि उसके कामों के अनुसार परमेश्वर प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। व्यक्तिगत संदेश 9 वचन से आगे, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेस्केंस गलतिया को और तीतुस दालमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तिखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तक तू आए तो उसे और पुस्तकें, विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तो भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। अब यहाँ पे अलग बात है। एक जगह में वो बोलता है प्रभु उसको रिवॉर्ड दे, हाँ, जिसने बहुत ज़्यादा सताया वो सिकंदर ठठेरे को परमेश्वर देखना ही चाहिए अभी, हाँ। लेकिन एक जगह ये बोल रहा है कि प्रभु उनका लेखा ना दे, प्रभु उनको लेखा देना ना पड़े, मतलब वो लोगों को अपना लेखा देना नहीं पड़े। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सताते हैं, लेकिन ये पौलुस उनके बारे में ऐसा कह रहा है कि ठीक है, और भी कुछ लोग मेरे साथ नहीं रहे जो मसीह थे, लेकिन मेरा विरोध किया उन्होंने, वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके यहाँ पे सेवा करूं। तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु तो अभी पूछेगा ना, ये तो सुसमाचार करने के लिए आया था, तेरा क्या प्रॉब्लम था, तू भी तो सुसमाचार के लिए चुना गया है, तो तूने विरोध क्यों किया, है ना। तो फिर उनको जवाब देने का समय नहीं होना चाहिए, वो जवाब के असर उनके जीवन में वो समय नहीं आना चाहिए, वो परमेश्वर उनको छोड़ देना चाहिए, ओके। ऐसा मसीहों के बारे में वो एक तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर बता रहा है, लेकिन जो ठठेरा है सिकंदर, उसके बारे में वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बताया। समझ लीजिए कि पौलुस है, वो पवित्र आत्मा का प्रेरित है, वो ठीक है, पवित्र आत्मा से प्रेरणा से चलने वाला इंसान है वो, उसके भावनाओं में वो कैसे अंतर करके बता रहा है ना। कुछ ऐसे रहते हैं जो ठठेरे होते हैं, जिनको हम चिढ़ जाते हैं उनके बारे में, उनकी बुराइयों को देखकर, लेकिन फिर हम उनके बारे में बोलते हैं प्रभु तू इसका कुछ बंदोबस्त करना है तेरी ओर से। लेकिन जब मसीह भाई बहन हमारे विरोध आ जाते हैं, हमको पता चल जाता है कि ये नहीं करना चाहिए इन्होंने विरोध, लेकिन ये कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं प्रभु छोड़ दे उनको। समझ में आ रहा है आपको। तो आपको भी अंतर करके अपने लाइफ के लोगों को आपको रास्ता बना कर चलाना पड़ेगा, ओके।
ये नहीं कर सकते हैं कि आप सबके साथ एक समान उठ जाएंगे, जैसे चाहिए वैसे चला देंगे उनको, वैसे नहीं। आपको समझ में आना चाहिए कि प्रभु के काम का विरोध मसीह भाई बहन ही कर रहे थे, तब उनके बारे में ये क्या कह रहे है ना। 17 वचन, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियों सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ओके। जब भी मैंने दुष्ट आत्माओं के विषय में कुछ देखना चाहता, मतलब बुक्स पढ़ना चाहता जो मसीहों के द्वारा लिखे गए हैं, कोई दुष्ट आत्माओं की ओर से नहीं। जब भी मैं जो रास्ते से होकर गई, कुछ ऐसे वेबसाइट्स में से होकर गई जो अन्य जातियों के वेबसाइट है, लेकिन मैंने टाइमिंग देखने के लिए उस वेबसाइट में चली गई, देखने के लिए कि ये लोग ये टाइमिंग में क्या है ऐसा विशेष कि ये समय में ये मुझे सताते हैं, ओके। ये दिन में क्या विशेष है इनका कि ये दिन का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो ऐसे उनकी जानकारी लेने के लिए, उनकी भक्ति की जानकारी लेने के लिए मैंने वो कुछ वेबसाइट्स को ओपन करके स्टडी किया था, ठीक है। उनके अंदर से मैंने एक बात को देखा, एट द एंड वो लोग यही बोलते थे कि आप सो एंड सो नाम का जप कीजिए तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी, या फिर वो एट द एंड ये बोलते थे कि सो एंड सो नाम को आप इतने बार जप कीजिए, इतने बार उसको कुछ ऐसे ऐसे चढ़ाइए तो फिर आपको कुछ ऐसे परेशानियां जो उस दिन होती है वो नहीं होगी। एट द एंड उनके लिखे हुए बातों में वो रहता था। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, ठीक है। परमेश्वर का पुत्र, इकलौता प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह सारे नामों से ऊंचा नाम, ऐसा क्यों कहा गया है, ओके। क्योंकि यीशु मसीह के नाम के सामने हर घुटना टिकना है। अब देखो, अगर उन्होंने कुछ बातों का जप किया तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मतलब दुष्ट आत्मा उनके मानेगा और उनका रास्ता छोड़ देगा। ये उनका बिलीफ है और वो बिलीफ में वो चलते हैं और उस बिलीफ का उनको अंजाम भी मिलता है, हाँ, परिणाम भी मिलता है, ठीक है। तो उनका विश्वास बन गया है कि अगर तुमको ये प्रॉब्लम है तो तुम इस नाम का इतना इतना जप करो तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब स्पिरिट को मिसडायरेक्ट करना, किस नाम से वो स्पिरिट आपका पीछा छोड़ता है, वो नाम वो लोग इम्पोर्टेंट रखते हैं, हाँ, उस नाम के आइडल्स बनाकर रखेंगे, हाँ, पहचान में, ताकि वो दुष्ट आत्मा पहचान ले कि ये लोग किसकी भक्ति करते हैं, ओके। तो वो आइडल्स बनाएंगे या उसकी चीज़ें अपने साथ रखेंगे या उसका फ़ोटो अपने साथ रखेंगे या फिर उसके नाम को वो लगातार याद में, स्मरण में बनाए रखेंगे। तो दुष्ट आत्मा नाम को महत्व देती है, ये मुझे आपको बताना है, ओके। नाम को महत्व देती है, इसके लिए वो लोगों की अगर हजारों में 10 दुष्ट आत्माओं को वो एक कोई ऐसा नाम जिसका आइडल बनाया हुआ है और जो सब लोग जानते हैं उसका नाम लेके 10 दुष्ट आत्माओं को, परेशान करने वाली आत्माओं को रोक लगा सकते हैं, तो फिर एक नाम अगर इतना उनका कामयाबी दे रहा है, हमारे पास कौन सा नाम है? सारे नामों से ऊपर वाला नाम है, हालेलुया। तो हमारी कामयाबी का शोर कितना होना चाहिए? आपको थोड़ा कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा, कंपैरिजन करके देखो। अगर वो एक नाम के बारे में विशेषता जान गए हैं अन्य जाति, इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि अंधेरे के संतान जो है वो उजियाले के संतान से ज़्यादा चतुर, चालाक और बुद्धिमान है,
ओके, क्योंकि उनको आत्मिक जगत के अंदर से किसकी वैल्यू कैसे है और उस वैल्यू के वो किस प्रकार से निपटना है, उनको वो वैल्यू का इस्तेमाल करके ये वो जानते हैं। हालेलुया। लेकिन हम नहीं जानते हैं, जबकि पूरा बाइबल हमको ठोक ठोक के बता रहा है सारे नामों से ऊंचा। हम गाने में भी गाते सारे नामों से ऊंचा, हम दिन और रात मनन करते सारे नामों से ऊंचा। अरे असर कहाँ है आपका? समझ में आया? असर इसीलिए नहीं दिखता है आपको क्योंकि सिर्फ उसी के अंदर वो काम करता है असर, जब उसको जानते हैं आप कि ये क्या मतलब बनता है। सारे नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह नाम है। क्या मतलब बनता है इसका? हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह है। ओके, तो आपको इसका महत्व अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप यीशु में होने के बावजूद भी दुष्ट आत्माओं का प्रबल होना आपके ऊपर चलता रहेगा। क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ, अन्य जाति अगर कुछ आइडल का नाम जपने से तुम्हारे काम बिगाड़ सकता है, हाँ, तुम्हारे काम बिगाड़ सकता है, तुम्हारे रास्ते भटका सकते हैं, तो यीशु का नाम जपने से तुम अन्य जातियों के शक्तियों को कैसे निपटोगे नहीं? हाँ, कैसे उन शक्तियों का विरोध तुम सफलता से कर नहीं पाओगे? समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? हाँ, तो आपको ये बात ध्यान में लेना है कि यीशु नाम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये क्या कह रहा है। देखो 17 वचन, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले, मसीह के मुंह से छुड़ाया गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? अन्य जातियां कैसे उनका विरोध कर रही होगी, पौलुस का शक्तियों से विरोध कर रही होगी। समझा? उनके डेज रहते हैं, उस डे में वो विरोध करने का डेज रहता है, उस समय उनके पास शक्तियाँ रहती है, वो शक्तियों का इस्तेमाल लगा देते हैं। हाँ, तो ये सारे शक्तियों के सामना करता हुआ पौलुस कह रहा है मैं जीत गया। हाँ, मैं बाहर निकल आया उसमें से। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। हाँ, तो आपका भरोसा कहाँ है? अन्य जातियों का भरोसा उनके आइडल्स और उनकी शक्तियों के ऊपर है। वो उनके आइडल्स के टाइमिंग को जानते हैं, डेट्स को जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर चल रहे आइडल्स के नाम वो जानते हैं, और फिर वो उस आइडल को लेके, उस नाम को लेके वो आपका पीछा करते हैं। हाँ, अब उसका निपटना आप कैसे करोगे, आपको सीखने की ज़रूरत है। समझ में आया क्या लिखा है पौलुस ने? और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। हाँ, तो आपका छुड़ाने वाला प्रभु अकेला एकमात्र है, आपके लिए और किसी की आशा नहीं है। तो इतना आसान है ये बात हमको समझना। हम क्या बोलते हैं, सारे नामों से ऊंचा एक नाम, यीशु मसीह नाम। तो फिर आपके विरोध आने वाला आइडल को भी आपके पास किसका नाम है? यीशु मसीह का नाम है। अगर आपका कोई भी नुकसान कर रहा है तो उस शक्ति के ऊपर किसके नाम को चढ़ाना है? यीशु मसीह के नाम को। समझ में आ रहा है? अगर आपका कोई भी प्रकार का संकट है, विपत्ति है, उसके ऊपर किस नाम को चढ़ाना है? यीशु मसीह के नाम को। हाँ, अब आपके समझ में आना चाहिए ये बात कि वो नाम कभी ना बदलने वाला नाम है। अन्य जातियों में रोज नाम के दिन ठहराए गए हैं। ओके, अलग कैरेक्टर एक नाम का रहता है। कल को वो आपको नहीं मिलेगा, कल को दूसरा कैरेक्टर वाला नाम रहेगा, परसों तीसरा कैरेक्टर वाला नाम रहेगा, तरसों चौथा कैरेक्टर वाला नाम रहेगा। यानी कैरेक्टर बदलता जाता है। रोज का 24 आवर्स के साइकिल में भी उनके पास हर एक घड़ी है, उस घड़ी के अंदर का प्रहर ओके के अनुसार उनका कैरेक्टर बदलता जाता है। समझा? कुछ अच्छा कैरेक्टर है जो अमृत जिसे कहा जाएगा, बहुत सुहावना कैरेक्टर। कुछ ऐसा नेक्स्ट समय ऐसा भी आता है जिसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ मचाई जाएगी, उद्वेग हो जाएगा। हाँ, फिर कुछ समय के बाद ऐसा कैरेक्टर आता है जिसके अंदर आपको पूरी तरह से सत्यानाश करने वाले, ऐसे मनोकामना रखने वाले अटैक कर सकते हैं, रोग काल कहा जाता है। ओके,
फिर ऐसा भी समय आता है उसके बाद, ऐसा कितना सारा ऐसा एरिया है उनका जो बदलते रहता है। हर महीने का उनका एक विशेष कैरेक्टर है, हर दिन का उनका एक विशेष कैरेक्टर है, हर एक सप्ताह का उनका एक विशेष कैरेक्टर है, हर एक मून फेसेस का उनका विशेष कैरेक्टर है। तो मेरे प्यारे प्रभु के बच्चों, कैसे समझोगे आप हमारे पास जो परमेश्वर है और अन्य जातियों के पास जो है, उनमें और हमें फर्क क्या है? कितनी बार हमने ये बात को बोला है प्रार्थनाओं में कि एक समान रहने वाला, युगान युग एक समान रहने वाला, हालेलुया। वो कैरेक्टर बदलने वाला है, प्रभु नहीं है, इसके लिए वो 24/7 अवेलेबल है हमारे लिए। हाँ, लेकिन अगर समझो आप अन्य जातियों को पूछेंगे ना, तो वो आपको बोलेंगे अरे आज तो वो कैरेक्टर वाला जो था आज का वो उनका भक्ति वो तो आज खत्म हो गया, अब अगले बार के लिए इंतजार लगाइए। हालेलुया। ओके, तो हमारे पास आज, अभी, कल, आने वाले भविष्य में युगानुयुग सदाकाल समान ठहरने वाला पराक्रमी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान यहोवा हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। तो वो ना कल का आपका मुश्किल को आपको कहेगा कि अब 10 दिन के बाद देखेंगे, क्योंकि उसका काम 10 दिन के बाद हो सकता है, वो कैरेक्टर 10 दिन के बाद हो सकता है। और ना ही आपको ऐसा कहेगा नहीं अभी 4 दिन हो जाने दीजिए, 5वें दिन में जाके वो कैरेक्टर वाला जब रहेगा तभी हमारा वो काम हम उस समय कर सकेंगे। वो बिल्कुल आपके समय, प्रहर और मून फेसेस और कोई चांद और सूरज और सितारों के जो तरीके होते हैं उसमें बैठने वाला वो परमेश्वर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं माय फ्रेंड्स। समझ में आया? हमारी भक्ति उस परमेश्वर की है जो सारे नामों के ऊपर ऊंचा नाम है। जब आपको कोई शक्ति, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई प्रकार की लाचारी, कोई भी शक्ति का प्रमाण आपके ऊपर बढ़ा रहा है कोई, तो उसके पास एक आइडल है, एक नाम है और उसकी प्रधानता को वो बहुत अच्छे से जानता है और उसके सारे गैंगस्टर्स जो स्पिरिट्स है उसको लेकर वो आपके ऊपर बल चढ़ा रहा है। समझ में आया आपको? आपके पास जो है उन सारे बल के ऊपर चढ़ने वाला नाम है और वो है यीशु मसीह नाम। हालेलुया। तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इसका कारण क्या है। क्योंकि जब उनके शक्तियाँ वो नाम लेके इस्तेमाल कर रहे, उसको चाहिए वो समय के अंदर वो सब काम पूरा करके, उसको खुश रख के, उसके सारे प्रधानता में जितना कुछ उसके गैंग्स स्पिरिट्स के वो सब लेके फिर आपकी ओर वो लोग आ रहे। तो मेरे परमेश्वर के बच्चों, आप सोचो, प्रभु में समय बिताने वाले आप लोग, प्रभु में वचन में बिताने वाले आप लोग के सेना जब उनके विरोध चढ़ाई करके जाएगी तो मुकाबला हो जाएगा और उस मुकाबला में आपकी ओर की सेना सबसे ज्यादा होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपकी ओर से जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे नामों से ऊंचा है। तो घुटना कौन टेकेगा? आप नहीं, आपका विरोधी टेकेगा। समझ में आया? अकल हमारे अंदर की होनी चाहिए, कि बुद्धिमानी हमारे अंदर की होनी चाहिए। हमको अंधेरे के कोई बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई नाम से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई कामों से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई गैंग से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा इकट्ठा करके एक आइडल रहता है, एक नाम रहता है और उसकी प्रधानता रहती है और उसकी सेना रहती है। बात खत्म। और फिर हमारे पास देखेंगे एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह, और उसका सारा संपूर्ण सृष्टि के अंदर का, संपूर्ण यूनिवर्स के अंदर का सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह नाम है। हालेलुया। तो आपने क्या बोलना है? हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। घुटना टेकना ही पड़ेगा शैतान की आत्माओं को और शैतानी एजेंट्स को घुटना टेकना ही पड़ेगा। अगर वो उनके दुष्ट आत्माएं लेकर आपको इतना परेशान कर सकते हैं, अगर आपने यीशु मसीह का नाम लेकर उठ गए, कम ऑन,
मुझे बताइए। वो मैदान में आप देखने वाली बातें हैं फिर, ओके, देखने वाली बातें हैं, करके देखिए आप, ओके। और जब शत्रु आपको कैसे हराएगा पता है? वो आपके पास ऐसे स्पिरिट्स भेजेगा जो आपको बोलेगा क्या है, बस करना, कुछ फायदा नहीं है, इतना यीशु यीशु करके क्या है, कुछ फायदा नहीं है, ऐसा निराशा दिखाएगा। देख कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है, ऐसा निराशा दिखाएगा। क्योंकि उसको पता है अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो उसकी तो खैर नहीं है फिर। हालेलुया। क्योंकि उसकी शक्तियां खड़ी रह नहीं सकती है। ये तो चैलेंज है हमारी ओर से उनको, ये तो चुनौती है हमारी ओर से उनको। हालेलुया। वो 10 दिन लगाए, वो 11 दिन लगाए, वो 14 दिन लगाए, वो 15 दिन लगाए, जितना दिन लगाना है, जितने महीने लगाए, जितना साल लगाए, लगाओ, वी डोंट केयर। घुटना तो तेरा ही टिकना है। हालेलुया। शैतान तेरा ही घुटना टिकना है, शैतानी आत्मा तुम्हारे ही घुटने टिकने हैं, शैतानी एजेंट्स तुम्हारे ही घुटने टेकने हैं। जंग तो जीत लिया है हमने, पीछे नहीं हटना है। इसके लिए अड़े के खड़े रहना, ये डायलॉग आप भी सीख लीजिए। समझ में आया आपको? क्योंकि आपका विरोधी अड़े के खड़े हैं। वो आपके पास जो सबसे ऊंचा नाम है, उसका नाम आपके लाइफ में इस्तेमाल नहीं होने का रास्ता जानता है वो, लेकिन वो नाम को वो टक्कर नहीं दे रहा है, वो आपको टक्कर देता है। समझ में आया? ओके। वो आपके इमोशंस को टक्कर देता है, वो आपके हिम्मत को टक्कर देता है, वो आपके अंदर का कमजोर अवस्था को याद दिलाता है। देख तू हार जाएगी, देख तू हार जाएगा, देख तू बीमार गिरेगा, देख तू गरीब हो जाएगा, देख तू लताड़ा जाएगा, देख तू परेशान हो जाएगा, देख तू ऐसा हो जाएगा, देख तू वैसा हो जाएगा। जैसे ही उसका ये डायलॉग आप सुन लेते हैं, आपकी प्रार्थना पीछे हटा लेते हैं आप, ओके। जैसे ही ये डायलॉग सुन लेते हैं, आप रोना धोना शुरू कर देते हैं, हाँ, विलाप करना शुरू कर देते हैं। अरे माय डियर फ्रेंड्स, सारे नामों के ऊपर जो नाम है, अड़े के खड़े रहने के लिए आपको कहा है। उस शैतान के सारे कामों को, शैतान के एजेंट्स को झुकना तो झुकना ही है, उसके पास रास्ता नहीं है दूसरा। चाहे वो आज झुके, चाहे वो कुछ समय के बाद झुके, दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपने उसको झुकाने के पीछे टाइम नहीं लगाया तो ध्यान रखो, आपने अगर उसके पीछे झुकाने को उसको टाइम नहीं लगाया, अगर समय इन्वेस्ट नहीं किया, तो मेरे खुदा परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा नाम है, उसका आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। समझ में आया? आपको समय लगाकर, आपके सारे काम बाजू में रख के, आपको उस शैतान के काम और उस एजेंट को एक अच्छा सा समय लगा देना है और फिर देखना है ये मुकाबला किस तरह से चलता है फिर। हाँ, ये देख लेना फिर गवाहियाँ कैसे निकलती है आपके अंदर से। देख लेना आप, आपके शत्रु कैसे आपका पीछा छोड़ते हैं, देख लेना आप। समझ में आया? क्योंकि वो नाम हम जानते हैं जो सारे नामों से ऊंचा नाम है। हालेलुया। उस भक्ति को हम कर रहे हैं जो सच्चाई के साथ है। अड़े के खड़े रहने से उसका फायदा हम उठा सकते हैं। आमीन। ये पौलुस की कहानी है। देखो क्या कहता है वो कहता है, प्रभु मुझे छुड़ाएगा बुरे कामों से, हालेलुया, और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंच जाएगा। क्या जबरदस्त आत्मविश्वास है देखो उसका। हाँ, क्या जबरदस्त शक्तियों का सामना किया उसने। क्या बोला? मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूँ। हालेलुया। हाँ, मेरा तो पूरा वो लोगों ने विरोध कर लिया था, लेकिन मैंने फिर भी अन्य जातियों में जाके काम पूरा करके आ गया हूँ। क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस है उसका। समझ में आया? तो ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर अड़े के खड़े रहने का कॉन्फिडेंस है। हाँ, क्योंकि उसने भले तरह से अपने अंदर दिमाग में पकड़ लिया है, ए कम ऑन, हाँ, तू जो कर रहा है ना सामने मेरे, वो तेरा काम नहीं होगा। हाँ, जो तू डींगे मार रहा है मेरे सामने होगा नहीं वो कुछ, क्योंकि तू जिस मैदान में उतरा है उसका प्रभु, उस मैदान के अंदर तेरा विरोधी जो है वो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। इसके लिए इस मैदान की जीत पहले से डिक्लेयर हो चुकी है। तो इस मैदान में उतरना, तेरे हार को तूने इनविटेशन भेजा है, ओके, तेरे हार को तूने बुलावा भेजा है।
समझ में आया। और जीत तो हमारी डिक्लेयर हो चुकी है, क्योंकि देखो अगर अन्य जाति 10 आत्माओं को डील करने के लिए एक नाम को जप सकते हैं और 10 आत्माओं को डील कर लेते हैं, तो आप सोचो सारे नामों के ऊपर जो नाम है उसका नाम जपने से सारे आत्माओं के ऊपर आप डील कर जाते हैं। हालेलुया। तो आपको अड़े के खड़े रहना है। समझ में आया। आपकी मुश्किलें कैसे आती है? लगातार आती है, लगातार आती है, लगातार आती है। अड़े के खड़े हैं वो लोग। इसके लिए दम है क्या उनके अंदर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि झूठ परमेश्वर कहता है उसमें कोई ताकत नहीं है। जब आप यीशु में अड़े के खड़े रहेंगे तो उनके ताकत सुखाने की ताकत बन जाते हैं आप। हाँ, उनके ताकतें खत्म होने की आपने जंग शुरू कर दी होती है। या तो उनको छोड़ के भागना पड़ेगा, या तो वो सूख जाएंगे उनके शक्तियों में और प्रभु में उतर जाएंगे। हालेलुया। तो आपने जो करना है, उस समय का आपके पास ये रास्ता रहता है। क्या आप समय इन्वेस्ट करने को तैयार है उनको हराने के लिए? आप देख लेना, फिर आप देख लेना, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके अंदर के समस्या निकल गई ये गवाहियां भी आपको मिलेगी। और फिर दोबारा आप जंग छोड़ के भागने वाले नहीं बनेंगे, आप मुसीबत देख के रोने वाले नहीं बनेंगे, आप दुख और कष्ट के सामने गिड़गिड़ाने वाले नहीं बनेंगे। आमेन, हालेलुया। ये आपको आज का टॉपिक मैं समझाना चाहती थी। एक्चुअली मैं इसको बहुत अलग तरह से आपके सामने लाने वाली थी, कि वो टाइटल लगा के मैं आपके सामने लाने वाली थी, लेकिन अब मैंने आपको ये सारी बातें दे दी सामने। ओके, जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए। हाँ, दुनिया झुकती है, हाँ, दुनिया झुक सकती है। दुनिया के अंदर का जो चलाने वाला है वो शैतान है ना। ये हमको पवित्र बाइबल से पता चलता है। अंधकार के अंदर का वो सारा माहौल संभालने वाला, कंट्रोल करने वाला शैतान है। तो फिर शैतान झुकता है, उसके सिस्टम झुकते हैं। झुकाने वाला चाहिए, और झुकाने वाले कौन है? मसीही लोग हैं। समझ में आया। लेकिन मसीह झुकते हैं, वो एक दर्दनाक सच्चाई हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हम नहीं झुकना है। हमने जो शैतान की ओर से उनको झुकाने में कामयाब होने वाला रास्ता पकड़ना है। और वो कामयाब होने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसा शत्रु आपका पीछा एक ही टॉपिक के साथ पीछा करता हुआ आ रहा है, आप भी उसके पीछे एक ही टॉपिक लेके निकल जाओ उसके पीछे। लगने दो, जितना साल लगता है, कितने दिन लगता है, जितना समय लगता है, लगा दो और देखो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम ये सच्चाई को अपने अंदर से परिपक्व नहीं करते हैं, तभी हम मैदान छोड़कर भागने वाले लोग बन जाते हैं। जगह छोड़कर भागने की सोचते हैं, घरों को छोड़कर भागने की सोचते हैं, हाँ, एरिया छोड़कर जाने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम मैदान के अंदर के वातावरण को नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ फूलों सा बिछाया हुआ रहे, हाँ, सब कुछ हरियाली हरियाली रहे। ओके, मसीह जीवन वैसा नहीं है। शत्रु के सामना करते समय वो जंगी मुकाबले में आड़े के खड़े होना पड़ता है हमको। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक समय लगाया और दूसरे बार के लिए उसको खुला छोड़ दिया। नहीं, आपको पूरी तरह से उसका सत्यानाश होने तक आपको उनका पीछा करना पड़ता है। आमेन। समय लगता है, देर लगती है, हमने उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, हमारे बाकी जो प्रार्थनाएं पीछे रह जाती है, लेकिन दुष्ट का अंत निश्चित हो जाता है। हालेलुया। हम शुरू करेंगे दोबारा इस बात को। अंतिम अभिवादन 19 वचन से आगे। प्रिस्का और अक्विला को ओनेसिफोरुस के घराने को नमस्कार। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रोफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पुंदेस और लिनुस और क्लौदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आप देखते हैं एंड कैसा किया? तुम पर प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया।
प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। मैं भी आप लोगों को यही बोलूंगी अभी, प्रभु तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने हमें फिट एंड फिक्स किया, हमें परिपक्व होने का मार्गदर्शन किया और हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आया। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन।